Alright, the next one says a girl's silent fight, caste, marriage, and being enough. Dear Junaid Bhai, Assalamu alaikum. I've been a silent follower of your content for years. What makes your voice different is that you say what others are afraid to even whisper. That's why I gathered the courage to write this. Maybe you'll never see it, or maybe you will. But if you do, I just want you to know that my story exists. I'm ABC, a 22-year-old graphic designer and a BBA student from Virtual University. I've spent the last 4 years of my life being crushed under the weight of one word, shadi. No one around me sees what it's doing to me mentally or emotionally. I hear the same things again and again. तुम्हारे बाल ख़त्म हो रहे हैं, इससे पहले शादी कर लो, लड़के छोटी लड़कियां मांगते हैं, तुम्हारी उम्र निकल रही है, शादी के बाद सब कुछ हो जाएगा, अभी सिर्फ शादी करो. I wish someone would stop to ask me what I want. I came out of a very painful relationship in the past. It wasn't toxic in the usual sense. There was no abuse, no violence, but the emotional damage was deep. I gave everything time, loyalty, hope, only to be left with no closure. He just walked away, leaving me questioning my worth. He used to abuse me so bad, uh, शायद मैं समझा नहीं सकती उसने मेरे साथ क्या किया. He rewired the way I think. A master in manipulation, I cried for nights silently, trying to understand why my love wasn't enough. That experience made me fear relationships, love, and even people. But then, out of nowhere, I met someone new. He is 22, just like me. He recently graduated and doesn't even have a stable income yet. He's not what society would call a handsome or established, but in his presence, I felt peace. He listened, he never judged me, he handled my emotions like they mattered. I realized this is the kind of love I want. Not perfect, but soft and safe. I'm a person जिसे शादी से डर लगता है. Yes, also want a partner, but mentally I'm not ready for it. My mom asked me multiple times कि तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो. क्या बताऊं उन्हें, उनके सपनों का शाहरुख खान जैसा शख्स मुझे नहीं पसंद आया है कि एक एवरेज सिंपल बंदा है. मुझे डर है जिसे मैं पसंद करती हूँ वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतरेगा. पाकिस्तान में 22 की एज में लड़कों का ग्लो अप नहीं आता, उन्हें वक्त लगता है. पर बेटियों के पास किसी भी चीज़ का वक्त नहीं होता, उन्हें अपने घर में रहने की मोहलत चाहिए होती है. Unfortunately, when his parents got involved, they said no just because of the caste. No one cared about how I felt, just an old tradition ended everything. Meanwhile, my own house is a battlefield. My mother, who at one point started changing once, began to treat me like her daughter again. After years of shouting and pressure, she softened up. She lets me speak. I felt like maybe she understood. For the first time in years, I trusted her. But then, after the latest rishta I rejected, everything broke up again. She told me, लड़के छोटी लड़कियां मांगते हैं, अब किसी को क्या समझाए, तुम ही नहीं मान रही. And all the softness vanished. I'm back to being blamed, back to being the girl who is ruining her own life. I still want him in my life. अल्लाह से दुआ जारी है, अल्लाह कोई मुआवजा कर दे. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने लिए स्टैंड कैसे लूँ. Also, virtual study is so hard. I'm about to give up because my family is so toxic. वो हर चीज़ को मुश्किल बना रहे हैं. Just want someone to say it out loud. Girls are not products with expiry dates. Not every 22-year-old wants to rush into marriage. Some of us have dreams, heartbreaks, and healing to do. Junaid bhai, I know you're not a therapist and I'm not asking for sympathy, but if you ever speak again about how society crushes its own daughters, you'll know one of them is me. मेरे लिए दुआ करिएगा. Thank you for reading this. Even if this email ends here, it still means something that I finally said it with sincere respect. So ये जैसा कि आपने देखा कि ये 22 साल की बच्ची है और she was in a relationship but the guy was a manipulator. बीबीए कर रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, ग्राफिक्स डिज़ाइनर है एंड घर में बड़ा प्रेशर है शादी का. खैर वो पहला वाला तो चला गया, फिर जो दूसरा मिला वो उतना भी कमाता नहीं है. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कास्ट वाली बात तो उस खैर फजूल है जिसकी वजह से वो रिश्ता एंड हुआ. बट व्हाट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि भाई दैट्स ट्रू, 22 वाले लड़के उतने रेडी नहीं होते कि वो फाइनेंशियली उतना सपोर्ट कर सके अनलेस समवन हु इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल. और खाली फाइनेंसेस नहीं चाहिए होते, इमोशनल अवेलेबिलिटी एंड इमोशनल मेच्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. बाकी लड़कों को
छोटी लड़कियां पसंद होती हैं, दिस एंड दैट, नॉट गोना डिनाई, हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ऐसा ही है। मर्द भले 45 साल का हो, उसको 20-22 साल की लड़की मिल जाती है। या मैन, दैट्स क्रेजी एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी कि अब ज़ाहिर है आप टैलेंटेड भी होंगी, पढ़ भी रही है, पढ़ना चाह रही है, लेकिन घर का टॉक्सिक माहौल आपको पढ़ने नहीं दे रहा। और ये हर घर की कहानी है। अब इमेजिन एक मुल्क में 51% इतना लगाया हुआ है दीवार से कि ना उसको पढ़ने दे रहे हैं, और उसके कांस्टेंट प्रेशर में। एक 22 साल की बच्ची छोटी होती है यार, उसको रोज़ अगर आप ये टेंशन उसके दिमाग में भर दें, शादी 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 शादी, एज इफ शादी इज़ द अल्टीमेट अचीवमेंट दैट यू एवर गेट। इट्स नॉट अ रेमेडी फॉर एनीथिंग। शादी करके भी क्या ही हो जाता है। और स्पीक ऑफ शादियाँ, हमारे यहाँ कहते हैं जी जिना बड़ा आसान है, शादियाँ मुश्किल है। और अगर कोई अपनी पसंद से शादी कर लेता है, उसको गोलियां मार देते हैं। तो फिर आप खुद इन्फोर्स कर रहे हो कि लोग जिना करें। जैसे बलूचिस्तान में मार दिया। मेरे घर के सामने से 2 लाशें मिली पिछले हफ्ते, फैसलाबाद की वो थे लड़का और लड़की, और वो शादी करके कराची आ गए थे, और उनकी लाश मिली अभी 2 दिन पहले यहाँ से। शादी ही की थी ना, सुन्नत ही की थी ना। ठीक है, अगर उन्होंने एक अनकन्वेंशनल तरीके से की, देखें इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ज़बरदस्ती नहीं जोड़ सकते लोगों को। भाई लोगों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, और वो अपने लिए बेहतर समझना जानते हैं, मगर बस वही रीत रिवाज ट्रेडिशन इसके नाम पर गोलियां मारते फिरते हैं। और वेरी वेरी ट्रैजिक टू सी। तो उससे लोग क्या सबक सीख रहे हैं यार, शादी नहीं करनी। जब तक वैसी मामला चल रहा है चलाते हैं, शादी की तो गोली पड़ेगी। यही हो रहा है ना। तो खुद ही आप इन्फोर्स करते हो इस तरह की, और फिर कहते हो माहौल ख़राब हो रहा है, लोग शादियां नहीं कर रहे, जब कर रहे हैं तो गोलियां मार रहे हो। वैसे स्पीकिंग ऑफ फाइंडिंग लाश, यहाँ मेरे घर के सामने 10-12 साल पहले, तब तो मैं यहाँ रहता भी नहीं था, एक लाश मिली थी। अ फेमस गाय मर्डर्ड समवन, हिज ओन फ्रेंड, और बाथटब में एसिड डाल के उसकी लाश डिकम्पोज की, और फिर उसको कारपेट में लपेट के यहाँ पे विद हिज गर्लफ्रेंड। और जब लाश डिस्पोज हो रही थी, while it was happening, मार के पिज्ज़ा ऑर्डर किया। इमेजिन हाउ रूथलेस यू हैव टू बी कि आप एक बंदे को काट रहे हो, और आप बोल रहे हो यार अब भूख लग रही है यार, एक काम करते हैं पिज्ज़ा मंगाते हैं। फिर पिज्ज़ा आया, वो खाया, फिर उसको एसिड में डाला, एंड देन फिर यहाँ सामने, बिल्कुल सामने। द गाय इज स्टिल इन जेल एंड ही विल बी रिलीज सून। मशहूर आदमी है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, खल्ली वल्ली बाहर आके मेरे को ही मार दे। सो एनीवे, तो you've been through a lot as a 22-year-old। मुझे तो ये बड़ी हैरत होती कि हम इतने छोटे छोटे बच्चों पे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, इतना ज़्यादा प्रेशर डालते थे। हम उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग होने ही नहीं देते। वक्त से पहले उनको बड़ा कर देते हैं, वक्त से पहले उनकी इनोसेंस जो होती है ना बच्चों की, हम वो मार देते हैं, छीन लेते हैं। लड़कों की ऐसे मारते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ बोल बोल के, और पेरेंट्स ही मारते हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, इस मुल्क के पेरेंट्स हैं, और कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान नहीं है, कोई और नहीं है, या फिर इंडिया नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन इस मुल्क के लोगों का उन बच्चों के अपने पेरेंट्स हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे ये जुल्म करते हैं। ट्रेडिशंस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, प्रेशर के नाम पे, कोई किसी को पढ़ाई का प्रेशर दे रहे हैं, मतलब बच्चे मार रहे हैं आप डेली बेसिस पे, एंड लाइक नोबडी गिव्स अ डैम। और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, फोर्स मैरिजेस के नाम पे। एंड इट्स अ लॉट ऑफ लोड फॉर अ 22-year-old टू कैरी। आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि अगर वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है तो आपके लिए फिर मुश्किलात हो सकती है, अनलेस यू वांट टू बिल्ड समथिंग टुगेदर एंड यू वांट टू वर्क टूवर्ड्स इट, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर आपकी फैमिली कास्ट वाली बात पे मान भी जाएगी, फिर अगर वो उस पे आ जाएगी कि लड़का इतना कमाता नहीं है, तो वो मुश्किलात पे मुश्किलात ही रहेंगी। अगर आप मिरेकल की होप कर रही हैं तो ठीक है। बाकी डोंट कॉल योर सेल्फ कन्फ्यूज, यूर अवेयर, योर सेल्फ अवेयरनेस तो है आप में, मेच्योरिटी कि आपको एक पार्टनर चाहिए, स्केप नहीं चाहिए। स्केप तो आपको बड़े आराम से मिल सकता है इस पूरी टॉक्सिक सिचुएशन से। वो स्केप क्या है कि आप अम्मी की बात मान लें और जो रिश्ता है हाँ कर दें, मगर वो स्केप इनटू अनदर केज है। एक एक उससे आप कैद से निकलेंगी, जेल से, और दूसरी जेल में चली जाएंगी, और यही आपकी ज़िंदगी है। और फिर उस जेल में मज़ीद
बच्चे ऐड हो जाएंगे जो कि और मज़ीद आपकी पैरों की बेड़ियाँ बन जाएंगे, देन यू वोंट बी एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली। फिर आपके साथ जिंदगियां जुड़ जाती हैं एंड रोज़ाना हर घर में मिजरेबल औरतें भरी पड़ी हैं। एंड हाउ कैन यू हैव अ ग्रेट सोसाइटी व्हेन एवरी हाउस होल्ड हैज़ सो मच टॉक्सिसिटी एंड मिजरी हैपनिंग। बाकी ये कि so your first relationship was very toxic and manipulative, and the second guy feels safe and it's healing. तो लव असल होता ही वो है जो आपको हील करे, जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करे। भले सोसाइटी उसको अप्रूव करे या ना करे, वो एक अलग चीज़ है। बट आई कांट फकिंग रिलेट टू ऑल दिस। अब आप ये देखिए कि हमारे यंगस्टर्स पे, सॉरी मेरा नाक बंद हो रहा है, कितना प्रेशर है कि उन्होंने सोसाइटी में भी ऊपर आना है, पढ़ाई भी अच्छी करनी है, कमाना भी है, अपने आप को गुर्बत से भी निकालना है। एट द सेम टाइम ये जो जनरेशनल प्रोग्रामिंग है ट्रेडिशन के अराउंड, कास्ट के अराउंड और ये सारी चीज़ें, उससे भी लड़ना है। वो भाई इतनी इतनी सारी फाइट्स एक 20 साल के बच्चे के कंधे पे आप डाल देते हो। इट्स वेरी वेरी ब्रूटल। और हमारे यहाँ जो ये कहते हैं ना, शादी सैल्वेशन नहीं होती, इट्स ऑफन माइग्रेशन फ्रॉम वन कैप्टिविटी टू अनदर इन मोस्ट केसेस। एंड वो जो आपने बात की कि आपकी मदर सॉफ्ट हो गई थी और फिर उसके बाद दोबारा वो जो है दोबारा हार्ड हो गई, तो दैट्स हर फेयर। तो उन्होंने बोला कि चलो यार, डर से तो काम नहीं चल रहा, सॉफ्ट होकर देखते हैं। सॉफ्ट होकर आपको एक पॉइंट तक लाए, और जब देखा कि वो भी नहीं काम हो रहा, तो शी इज़ बैक टू हर reality, back to life, back to reality. So yeah, अब she is under a generational trauma and generational programming of कि बच्चियाँ are like hot coal, इनको हाथ पे नहीं रख सकते, जब जितनी जल्दी हाथ से फेंके और कोई और कैच करे तो उनके हाथ जलते रहेंगे। तो ये इनकी प्रोग्रामिंग है। एंड उनकी सोसाइटी में वैल्यू इसी बुनियाद पे नहीं, इस बुनियाद पे नहीं है कि बच्ची ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ी है या वो यूनिवर्सिटी भले वर्चुअली कर रही है, ये उनकी सैल्वेशन नहीं है। उनका मेडल ऑफ ऑनर है कि भाई कितनी जल्दी बच्ची ठिकाने लगाई। दैट्स इट। वो इसी पैरामीटर पे जज हो रही है। अब ये रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का कि जो है कितनी जल्दी बच्चे से जान छुड़ा दे। अब ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली बात है, ये जो हम शुरू में बात कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम वाली, कि एक तो घर टॉक्सिक, ऊपर से आप भी घर पे ही हो, तो वो टॉक्सिक प्रो मैक्स हो जाता है। सो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बो कि एक्सक्यूज मी कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी घर से तालीम ले रहे हो, घर का माहौल भी टॉक्सिक है, और थोड़ी बहुत अम्मी, जिस तरह मेरी अम्मी आ रही है चिकन खा लो, उस तरह आपकी अम्मी आ रही है शादी कर लो, तो doesn't make it easier. And you need to teach yourself कि you don't come with an expiry date. You're an individual, you're a respectful girl, a respectable girl who deserves nothing but dignity and honor. और वो इस पे बुनियाद नहीं करती डिग्निटी। अ रिंग डजंट डिग्निफाई यू। कि किसी की अंगूठी आपकी उंगली में आएगी तो ही आप एक ऑनरेबल औरत बन सकती है। यू आर योर ओन ह्यूमन बीइंग एंड यू नीड टू टीच योर सेल्फ दैट ऑल द टाइम कि यू आर अ हीरो ऑफ योर ओन फिल्म, यू डोंट नीड अनदर हीरो। हाँ, आ जाए अच्छी बात है, बट ये कि सिर्फ वो उसके आने से ही कंप्लीशन, ये गलत थॉट है। ये हमारी सोसाइटी का एक फैब्रिकेटेड झूठ है कि जी जोड़ों में ही लोग सही रहते हैं। जोड़ों में दर्द हो जाता है भाई। हो जाए तो अच्छी बात है, मगर ये कि अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करें कि यू डोंट कम विद एन एक्सपायरी डेट। हाउ एवर मच दिस इज़ ट्रू कि सोसाइटी हमारी चलती है ऐसी कि वो 28-30 के बाद हाथ उठा लेती है, और मर्दों की प्रेफरेंस होती है यंगर लड़कियों की तरफ। हाउ एवर दैट मच इज़ ट्रू। आप एक इंसान हैं, आप सिर्फ दुनिया में इसलिए नहीं आई है कि एक फजूल किस्म की ट्रेडिशन को आप अपलिफ्ट करें या फिर उसको आप फर्दर फ्यूल करें। हो जाती है तो ठीक है। यू नीड टू बी विद द राइट पर्सन दैट मेक्स यू फील राइट, रादर देन फ्रॉम द फेयर ऑफ बीइंग अलोन और फ्रॉम द फेयर ऑफ बीइंग सिंगल ऑल योर लाइफ। इसलिए नहीं चूज़ करना होता पार्टनर कि वो मैं सिंगल रहूँगी सारी ज़िंदगी, इसलिए करना होता बिकॉज यू वॉन्ट टू। दिल से आनी चाहिए ख्वाहिश, फोर्स नहीं होनी चाहिए। बट स्टेटिस्टिकली यू माइट एंड अप इन टू अ फोर्सफुल
रिलेशनशिप, फिर उसमें आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा, एंड देन वी नो द ड्रिल। और ये चीज़ हमने लाखों करोड़ों बार अपने आसपास होते देखी। बट आई विश यू वॉक आउट ऑफ इट एंड यू डू रियलाइज यू हैव योर ओन पोटेंशियल। और ख्याल रखें, टेल योर बॉय टू मैन अप अ लिटिल एंड थोड़ा सा अपना लेवल अप करें। देखिए ये ट्रेडिशन वेडिशन कास्ट सब साइड में चली जाती है जब BMW 7 सीरीज़ घर की पार्किंग में आती है। सारे इस्तिहारे डाउन द ड्रेन चले जाते हैं, और सारे जो है कौन जट है, कौन बट है, कौन कुछ है, कुछ नहीं, खल्ली वल्ली। मनी टॉक्स, बुलशिट वॉक्स, ये याद रखिएगा। तो ये सब फजूल की चीज़ें हैं कि हम इनमें नहीं करते, उनमें नहीं करते। इनमें उनमें जब आता है ना बड़ी गाड़ी में, तो सब उन्हीं में ही करते हैं। समझ रहे आप? खैर चले, गुड लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।